Hello everyone, welcome back to another interesting session of Ankita's tutorial. So before starting this video, first of all, wishing you all a very happy Navratri. So on the eve of Navratri, today I am releasing this video. So I hope you all are doing well and please subscribe my channel and please do like and share my new videos because these are the MCQs videos. आप जितना फॉरवर्ड करोगे उतना ही स्टूडेंट्स जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक ये पहुंच पाएगा पर्टिकुलरली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. टुडे आई हैव प्रेजेंटेड सम MCQs on Microsoft Windows. 50 MCQs are there actually. So let's discuss one by one. So first question is, the desktop of a computer refers to four options are there as usual: visible screen, area around computer, top of mouse pad and inside folder. So what is the correct answer that I have highlighted here? The correct answer is visible screen. Now our next question is, the background of screen is known as, and again it has four options: application, windows, frame and desktop. So correct answer is desktop. जो है वो background of screen को desktop बोलते हैं. Third question, date and time are available on desktop at keyboard, recycle bin, my computer or taskbar. So the correct answer is taskbar. taskbar में डेस्कटॉप के टास्क बार में आपका डेट एंड टाइम अवेलेबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेटअप चॉइस एंड स्क्रीन इज कॉल्ड एज मेन्यू, रिवर्स वीडियो, एक्शन प्लानर, एडिटर. तो करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज मेन्यू. जो आपके स्क्रीन के अपीयर होते हैं, जो कुछ चॉइसेस रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? मेन्यू बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम यूटिलिटी कैन बी फाउंड इन वेयर वी कैन फाउंड add and remove, where we can add and remove program. Four options are there: control panel, CPU, desktop and my computer. Obviously the correct answer is control panel. ये क्वेश्चन में ज़्यादातर इतना एलेबोरेटली डिस्कशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि लैपटॉप में आप या फिर डेस्कटॉप घर में जो भी यूज़ कर रहे हो, हम ये सब बहुत ही सिंपल सा चीज़ है जो कि हम लोग को पता चलता है जब हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये एनालाइज करना या फिर थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, मैं वहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगी. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मॉल फिगर विच डिपिक्ट सम एप्लीकेशंस ऑन स्क्रीन कॉल्ड एज, करेक्ट ऑब्वियस आंसर, आइकॉन. जो छोटा छोटा जो स्मॉल फिगर आप अपीयर होता है स्क्रीन में, आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में, उसको क्या बोलते हैं? आइकॉन बोलते हैं. Moving to the next question, what is window explorer? So what is a window explorer? Four questions are there. First one is your drive, APC, network and file manager. So the correct answer is window explorer is a file manager. Just remember that window explorer जो है वो एक file manager है. My 8 number question is, alert are mostly appear in where alert usually appears? Checkbox, combo box, dialog box, none of these. So the correct answer is dialog box. ये जो alert dialog होते हैं ना, alert messages, it shows the alert message and gives the answer in the form of yes or no. जब alert message आता है, ये kind of warning होता है जो कि displays the message to warn you, आपको warn करने के लिए होता है. Then according to the user response, the next step is proceed. जब वार्निंग एक अपेयर होता है, आपको येस और नो में आंसर देना होता है. जो भी यूज़र का आंसर हो, वो यूज़र के आंसर के अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट स्टेप वो लेता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशंस दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन ए हार्ड डिस्क? जो प्राइमरी पार्टीशन है हार्ड डिस्क में, मैक्सिमम कितना होता है? हम लोग 4 पार्टीशन कर सकते हैं प्राइमरी. वैसे तो हम हार्ड डिस्क में जितना पार्टीशन चाहें एज पर आवर नीड we can do that, but if we are going for a primary partition, then it will be 4. Okay, 10th number question is, to maximize window means what? विंडो को मैक्सिमाइज करना है मतलब क्या? उसको इतना मतलब आपको स्ट्रेच करना है, दैट इज द एरिया अराउंड मॉनिटर के जितने भी एरिया है उसके हिसाब से आपको स्ट्रेच करना होता है, तो उसको ग्रो करना होता है. तो दैट इज द करेक्ट आंसर, एरिया अराउंड मॉनिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू श्रिंक विंडो टू एन आइकन, उसको क्या बोलते हैं? अगेन देयर इज 4 ऑप्शंस: ओपन ग्रुप विंडो, मिनिमाइज विंडो, मैक्सिमाइज विंडो एंड ऑल ऑफ दिस.
ऑब्वियस आंसर मिनिमाइज विंडो। ग्रो करना होता है तो मैक्सिमाइज विंडो होता है, जब श्रिंक करता है हम लोग आइकन को दैट इज मिनिमाइज द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल एक्सटेंशन आर यूज इन ऑर्डर टू व्हाट? Four options are there. Name of file, identify the file, identify of file type. None of this. So the correct answer is identify of file type. So what do you mean by file extension? See, file extension means suffix जो होता है ना, वो उसको kind of suffix, ठीक है। File extension also called as a file format is the layout of a file in terms of how data within the file is organized. जो एक फाइल का लेआउट होता है उसमें आप डेटा किस हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं वो उसको ही फाइल एक्सटेंशन और आपका फाइल फॉर्मेट बोलते हैं। सो ये क्या एक्चुअली में वो आइडेंटिफाई करता है? आइडेंटिफाई ऑफ फाइल टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पार्ट ऑफ टास्क बार दैट हैज आइकन ऑफ बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन इज व्हाट? सिस्टम ट्री, स्टार्ट बटन, टास्क बार, क्विक लॉन्च। सो द करेक्ट आंसर इज सिस्टम ट्री। नाउ व्हाट इज दिस सिस्टम ट्री? सिस्टम ट्रे को ऑल्सो बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है। व्हाट इज सिस्टम ट्रे ऑल्सो नोन एज? तो सिस्टम ट्रे जो है वही है तुम्हारा नोटिफिकेशन एरिया। सो नोटिफिकेशन एरिया और सिस्टम ट्रे ये कहाँ होता है? लोकेटेड इन विंडोज टास्क बार पे होता है, जो कि यूजुअली एट द बॉटम राइट कॉर्नर पे होता है। अभी ये क्या कहाँ होता है एग्जैक्टली? इट कंटेन्स मिनिएचर आइकन्स। आपके जो मिनिएचर आइकन नहीं जिसमें आप यूएसबी इंसर्ट कर सकते हो, बैटरी कितना है दिखाता है, फिर एंटीवायरस सेटिंग्स जो दिखाता है, बहुत ही मिनिएचर आइकन जो टास्क बार के राइट हैंड साइड आपके कॉर्नर में होता है। वॉल्यूम आप ऊपर नीचे कर सकते हो, सिस्टम के वॉल्यूम, सो एंड बैटरी स्टेटस, ये सब जो मॉडेम जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, वो मिनिएचर आइटम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जगह को सिस्टम ट्रे बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज योर नोटिफिकेशन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज एन, ऑब्वियसली दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नो नीड टू रिपीट दिस ऑप्शंस। फर्स्ट नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज इंटरफेस मैनेजर, इंटीग्रेट मार्केट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। सो द फर्स्ट नेम जब माइक्रोसॉफ्ट विंडो डिस्कवर हुआ था या फिर इन्वेंट हुआ था तो उसका फर्स्ट क्या नाम था? इंटरफेस मैनेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हैज फैमिलीज इंक्लूडिंग Window NT, Window IoT, both A and B and none of the above. So both Window NT, that is the NT stands for new technology, and Window IoT, Internet of Things. ये दो जो है ये both are coming under Microsoft Window family के ही दोनों हैं। Okay, next question, first Microsoft Window has used in which computer? Super computer, micro computer, mini computer and personal computer. So the correct answer is पर्सनल कंप्यूटर में आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो फर्स्ट यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी बॉट द पॉपुलर वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर स्काइप? तो व्हाट्सअप, फेसबुक, हेडसन, माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। अभी तो हम लोग टीम में, जूम में, मीट में सब कुछ कर रहे हैं, पर पहले जब हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ करता था हम लोग स्काइप, आप सुने होगे ज़्यादातर स्काइप पहले बहुत यूज़ हुआ करता था, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is version of window? Window 1.0, window ME, window that is me, window me, window NT. Me, that is the millennium edition. NT stands for new technology, ME stands for millennium edition, all of this. So obviously all are the version of Microsoft Window. Next question, Window 1.0 program is known as what? MS-DOS executive, MS-DOS, Unix and none of the above. So the correct answer is MS-DOS executive, because Window 1.0 जो है वो रन करता है MS-DOS एज अ 16 दैट इज 16-bit सेल प्रोग्राम, एंड उसी को ही बोलते हैं MS-DOS executive, एंड इट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट विच कैन रन ग्राफिकल प्रोग्राम्स। तो ग्राफिकल जो प्रोग्राम होते हैं उसको अब आप उस 16-bit सेल के इन्वायरमेंट के दौरान रन कर सकते हैं वो प्रोग्राम को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which version of window doesn't allow overlapping windows? So the correct answer is window 1.0 जो है वो overlapping process को window को allow नहीं करता। Question number 22, Windows 95, 98 and NT are known as what? Processor, domain name, operating system model. It's a very simple question, that is operating system. Which window version introduced start button, taskbar and window explorer? Windows 1.0, Window 95, Window 98, none of the above. So the correct answer is Window 95 introduced start button,
taskbar and window explorer. Okay, now moving to the next question. What has been introduced in Windows 95? Start button, taskbar, Windows Explorer. That is obviously all of these above. So 23, 24 almost same question. Okay. Now next question. My computer was introduced in which Windows version? Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows 2006. So my computer to Windows 95 में इंट्रोड्यूस हुआ था. 95 जो वर्जन है विंडो के उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर फॉर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय माइक्रोसॉफ्ट इन which window version? Windows 95, Windows 3.0, Windows 3.11, none of this. So the correct answer is Windows 3.0 में 32-bit operating system were first time introduced. Next question. In Windows Millennium Edition, what does ME stands for? मैंने जैसे कि आपको बोल दिया था, that is the Millennium Edition. Next question. Windows ME was designed for which purpose? तो ये जो Millennium Edition विंडो का जो नया वर्जन आया था, ये particularly इसका पर्पस क्या था? So 4 options are again there. For business people, for home computer user, for desktop support, for systems restore. So the correct answer is for home computer user. Next question. Windows XP released in which year? Which year Windows XP has been released? 2000, 2001, 2002 and 2003. So correct answer is 2001 में Windows XP released हुआ था. Now we have reached in 30 number question. If we change Windows 98 to XP, we are actually what performing? अगर हम लोग विंडो के एक पर्टिकुलर वर्जन से पर्टिकुलर वर्जन को चेंज करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपग्रेड, अपस्टार्ट, अपडेट, इंस्टॉल. इसका मतलब ये है कि हम लोग अपग्रेड करते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच विंडोज वर्जन रीडिजाइंड और चेंजेस ऑफ टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू एंड विंडोज एक्सप्लोरर? सो द करेक्ट आंसर है अगेन विंडोज NT, विंडो ME, विंडो XP और विंडो 95. तो करेक्ट आंसर इज विंडो 95. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच विंडो वर्जन माइक्रोसॉफ्ट मेट्रो डिजाइन लैंग्वेज फॉर टच बेस्ड डिवाइस इंट्रोड्यूस्ड? तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी. दैट इज विंडोज 8 में और विंडोज 8.1 में आपका जो टच बेस्ड डिवाइस और मेट्रो डिजाइन लैंग्वेज है दोनों इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विंडो 98 विच मॉडल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड? यूजर ड्राइवर मॉडल, विंडो ड्राइवर मॉडल, बोथ ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर इज विंडो ड्राइवर मॉडल जो कि 98 में विंडोज 98 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. नाउ which is the first window operating system based on hybrid kernel? That is the new technology. Windows NT जो है वो कर्नेल बेस्ड हाइब्रिड कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान डिज़ाइन हुआ था. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, विंडोज 7. सी सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन. ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. तो इसमें से फर्स्ट हमको ये फाइंड आउट करना है विच इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑब्वियसली विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. रेस्ट आर द एप्लीकेशंस, isn't it? Next question. In Windows NT stands for what? That is the new technology. What is feature of Windows Vista? विस्टा में जो क्या प्रोसेस है, इनमें से कौन सा जो है वो एक विंडो विस्टा का प्रोसेस है? अपडेट लुक एंड फील, एरो पिक, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन एंड ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज अपडेट लुक एंड फील. माय नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following window version supports 64-bit processor? Windows 98, Windows 95, Windows NT, Windows XP. So correct answer is Windows XP actually support 64-bit processor because the primary benefit of moving to 64-bit is to हम 32-bit से 64-bit को क्यों मूव किए? बिकॉज टू इंक्रीज मैक्सिमम एलोकेट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी का एलोकेशन को हमें इंक्रीज करना था, इसीलिए हम लोग 32-bit से 64-bit के लिए मूव किए. दैट इज द एलोकेट रैम 32-bit एडिशंस ऑफ विंडो एक्सपी आर. एंड 32-bit का जो था वो लिमिटेड था 4 GB. टोटल 4 GB के तक आपका लिमिटेड था, इसीलिए हम लोग 64-bit को अपग्रेड हुए बिकॉज हम लोग मैक्सिमम एलोकेट कर सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. When was in Windows 10 released?
June 29, 2015 is the correct answer when the Windows 10 has been released. My 40 number question. Which of the following operating system doesn't implement multitasking truly? Windows 98, Windows 95, Windows NT, MS-DOS. So correct answer MS-DOS. ये सारे operating system except from MS-DOS सब मल्टीटास्किंग को ऑपरेट करते हैं, पर MS-DOS जो है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं करता. ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, डस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS विंडो? अभी तक का जितना हमारा विंडोज़ का वर्जन सब आया है उसमें से सबसे लेटेस्ट कौन सा है टिल नाउ? दैट इज़ द विंडो 11 हमारा लेटेस्ट डिस्कवरी है. ओके. व्हाट इज मीन्ड बाय NTFS? Again we have 4 options: new table format system, neutral table file sector, new technology file system, none of the above. So the correct answer is NTFS stands for new technology file system. Next question. A file which cannot be altered, compressed or manipulated in any way by computer is called, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते, कंप्रेस भी नहीं कर सकते, मैनिपुलेटेड भी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली दैट इज नोन एज द परमानेंट फाइल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेम गिवन टू द डॉक्यूमेंट्स बाय यूजर इज नोन एज, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करते हो उसको हम लोग सेव करते हैं जो भी फोल्डर में, तो आपको जो हम लोग नेम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द फाइल नेम. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंबल ऑन स्क्रीन दैट प्रॉम्प्ट यू टू टेक एक्शन एंड टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू नेक्स्ट. क्या करना है कंप्यूटर को और वो एक्शन लेता है, उसको क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है: स्कैनर, prompt and dialog box, information seeker, recycle bin. So obviously the answer is prompt and dialog box. Okay. Next question. Which program run fast after computer is booted and loading in GUI? कौन सा जो है फंक्शंस पहले होता है जब कौन सा प्रोग्राम है जो पहले रन होता है कंप्यूटर में जब वो बूट हो जाता है, कंप्यूटर बूटिंग हो जाने के बाद? तो करेक्ट आंसर इज ऑथेंटिकेशन जो होता है वो पहले प्रोग्राम आपका रन होता है आफ्टर कंप्यूटर इज बूटेड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू रिलोड ए वेब पेज प्रेस विच बटन? ऑब्वियसली रिफ्रेश करने के लिए हम रिलोड एक वेब पेज को रिलोड करने के लिए रिफ्रेश बटन हम लोग प्रेस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विंडोज स्टोर ऑल सिस्टम सेटिंग इन विच फाइल? main.ini, win.ini, system.ini, command.ini. So the correct answer is win.ini because the win.ini is the type of initialization and configuration file in the window operating system that store basic settings at the time of booting. जब booting होता है ना वो basic जो इसका settings है वो स्टोर हो जाता है, तो वो ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है एक, एंड ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन इज अ टेक्स्ट एडिटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? तो विच वन इज अ टेक्स्ट एडिटर? नोटपैड, वर्ड फाइल, एक्सेल. तो करेक्ट आंसर इज नोटपैड बिकॉज वर्डपैड is a word processing software and Notepad is your text editor, and what we can do coding in Notepad but not in WordPad. Okay, my last but not the least question, what is the maximum size of a Word document created? The correct answer is 32 MB तक हम एक Word document को create कर सकते हैं. So this is all about my in this video. So 50 MCQs आप ये फॉलो करें. मैं नेक्स्ट जब मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं MCQs बना रही हूँ. सो प्लीज़ ये वीडियो कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बोले. और अगर किसी को कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, आई एम रिपीटिंग दिस सेम सेंटेंस इन माई एवरी वीडियो. सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. अगर आपको कोई भी पोर्शन जो कि लगता है कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ें समझ नहीं आती, तो अगर मुझे उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में यू कैन डू comment so that I will upload a separate video for that topic. Okay, so thank you all. Please do follow my video and do forward the video as maximum as you can, and please do not forget to subscribe Ankita's tutorial. Thank you all. Thank you.